جو زائرین یا مریدین آتے ہیں اس بارے کی تقریب کے اندر تو وہ اولیاء کرام خصوصی توجہ پاک اس پر ڈالتے ہیں، یعنی خصوصی توجہ پاک. تو جتنے بھی شامل جاتے ان کا پروگرام یہ تھا کہ ہم لاہور جائیں تو میرے قبلہ نے ارشاد فرمایا کہ تم اگر اکیلے آ جاؤ گے تو دوسرے اتنے بندے جو ہیں وہ محروم رہ جائیں گے محفل سے، تو اس لیے اپنے اپنے علاقے میں محفل کریں. سبحان اللہ. تو میں عرض کرنا تھا کہ ہمارا سلسلہ عالیہ صدیقیہ نقشبندیہ جہاں پر دوسرے سلاسل کی انتہا میں فیض ہے وہاں سلسلہ نقشبندیہ کی ابتدا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ جس طرح یارگار سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہیں، اسی طرح آپ کا سلسلہ بھی سلسلہ اول ہے. سبحان اللہ. تو اس میں ایسے جلیل القدر اولیاء کرام آئے، ایسے مایا ناز اولیاء کرام آئے کہ ہر ایک کا ذکر کمال ہے. لیکن میں مختصر سا ذکر اپنے قبلہ اپنے دادا مشرفہ کا کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ شیزہ آگے پڑھا جائے گا، پھر ذکر ہوگا، پھر انشاءاللہ نشر کا اہتمام ہے. میرے قبلہ دادا مشرفہ آپ ملتان شریف امام الاولیاء امام الاسفیاء غوث غیاث حضور میاں صاحب چادر سرکار کے مراد ہیں، مرید نہیں بلکہ مراد ہیں. آپ کا پورا خاندان جو ہے وہ حضور میاں صاحب چادر سرکار کا بیٹا، آپ کے دستے اکثر بیٹھ تھا. تو آپ کے میرے قبلہ دادا مشرفہ کے بھائی تھے میاں نثار صاحب پردہ فرما کے، تو آپ ہی وہ چادر سرکار کے بیٹھ. تو چادر سرکار نے ان کو حکم ارشاد فرمایا کہ دیکھو بابو جی، آپ کرنالی بارے میں بات کیا کرتے تھے، دیکھو بابو جی یہ باہر نہ جانے پائے. یعنی قبلہ دادا مشرفہ میرے قبلہ غوث امام خواجہ احمد سرکار انہیں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ کہیں باہر نہ جائیں، یعنی باہر بیعت نہ ان کو ہمارا بیعت کرانا. سبحان اللہ. یعنی جس طرح حضور علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے لیے دعا مانگی کہ یا الہی عمر جو ہے یعنی ان کو دائرہ اسلام میں داخل فرما. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں حضور علیہ السلام سے مراد ہیں. اس طرح اولیاء کرام جو ہیں ایک خاص مرد کامل ہوتا ہے، یعنی ہم ہوتے ہیں مرید، بلکہ ہم تو مراد کے مرید ہیں، مرشد کے مرید نہیں بلکہ مراد کے مرید ہیں. جن کی مرادیں پوری ہو گئی وہ مرید ہے، جن کا مسئلہ حل ہو گیا وہ مرید ہے، اور جس کا مسئلہ حل نہ ہوا وہ کہتا ہے کہ اس پیر کے پلے میں تو کچھ بھی نہیں. تو آپ غوث غیاث حضور میاں صاحب چادر سرکار کی مراد ہے. تو آپ نے ہمیشہ پوری زندگی وکالت کا پیشہ اختیار فرمایا، اور کبھی کبھی اکثر و بیشتر ملتان شریف حاضری کے لیے آتے. تو ایک دن حضور میاں صاحب چادر سرکار کی طبیعت بات کا ناساز تھی، تو آپ نے شاد فرمایا کہ آج ملاقات بند ہے، یعنی کوئی بھی ملاقات کے لیے نہ آئے. تو حضور خاص کار آپ کو پتہ نہیں تھا کہ ملاقات بند ہے. آپ جو ہے نا آسان عالی چلے گئے. باہر دروازے پر خادم نے بتایا کہ حضور میاں صاحب چادر سرکار نے ملاقات بند فرما رکھی ہے، اس لیے آپ کی طبیعت مار کا نقصان ہے. تو آپ جب واپس جانے لگے تو حضور میاں صاحب چادر سرکار نے اپنی نگاہ باطن سے دیکھا کہ باہر مرد درویش کامل کھڑا ہے. سبحان اللہ. تو ہماری مراد ہے. اللہ. تو آپ نے اندر سے خادم کو بھیجا کہ جو باہر کھڑے ہیں ان کو اندر لے کر. اللہ. سبحان. ابھی بیعت نہیں ہوئے. حضور خاص کار جن کا آج اس مبارک ہے ابھی بیعت نہیں ہوئے، یعنی یہ بیعت سے پہلے کی بات ہے. تو خادم اندر باہر گیا، آپ نے جا کر عرض کی کہ جناب آپ کو حضور میاں صاحب چادر سرکار مشرفات اندر بلا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ کی طبیعت مار کا ناساز ہے اور ملاقات بند ہے. تو آپ نے فرمایا، خادم نے کہا کہ آپ اندر تشریف لائیں. جیسے آپ اندر گئے، حضور میاں صاحب چادر سرکار کی جو پنچایت کے بندے تھے، یعنی آپ کے آپ کے جو خاص مرید ہیں یا خادم کے آسان عالیہ تھے، ان کو حکم ارشاد فرمایا کہ سب اٹھ کر ان سے مصافحہ کرو. سبحان اللہ. یعنی سب اٹھو اور ان سے مصافحہ کرو.
और हजूर में साहब चांद वाली सरकार खुद आप उठे, तबीयत बात सांस होने के बावजूद आप खड़े हो गए, आपने खड़े होकर मुसाफा किया। और जो मुरीदान थे, खादम थे, वो बड़े हैरान हुए कि पहली दफा आने वाले शख्स का इतना इकराम किया जा रहा है। लेकिन वो दरवेश कामिल की नजर थी, वो निगाहे दरवेश थी कि जिनको पता था कि ऐसा मर्द मुजाहिद है, ऐसा मर्द कामिल है जिनके फैज की हरारत से, जिनके ईमान की हरारत से दुनिया फैल जाती। और हकीकत में ऐसा ही हुआ। आप वापस चले गए तो हुजूर साहब चाहे सरकार आप लाहौर तशरीफ लेकर गए, आपके मुरीद थे। जब वहां गए तो हुजूर आए सरकार आपकी ज़ियारत के लिए गए, तो वहाँ आपके दस्ते हक पर दस्ते अक़दस पर बैत हुए हजूर चालीस सरकार के, और फिर आपको दावत दी कि हजूर मेरे घर में तशरीफ लाए। तो हजूर की ये चादर वाली सरकार पहली दफ़ा आपके घर में तशरीफ लाए और आपने आते ही एक हुक्म इरशाद फरमाया। आपने इरशाद फरमाया कि देखो बाबूजी, जो हमारे यहाँ है उसकी तस्दीक यहाँ पर हुई। आपके यहाँ क्या था कि बेनमाजी का दाखिला बना था, यानी हुजूर मियां साहब चादर वाली सरकार जो थे उनके आस्थाना आलिया पर उनके खास कमरे खास के अंदर यानी बेनमाजी का दाखिला बना था। आप बाहर बरामदे के अंदर मुलाकात फरमाया करते थे, तो इसलिए आपने इरशाद फरमाया कि देखो बाबूजी, जो हमारे यहाँ है उसकी तस्दीक यहाँ पर हुई, इसलिए आपके घर के अंदर कोई बेनमाजी ना आए, यहाँ लिख कर लगा दो। तो आपने इसकी तो हजूर मेरे यहाँ तो एक वकील होने की हैसियत से मेरे यहाँ तो लोग आते जाते रहते हैं, तो मैं किस तरह, आपने फरमाया कि आपके घर के अंदर यानी रिहाइश गाह के अंदर कोई भी ना आए। यदि आप बाहर दफ्तर में मना फरमाया करते थे, यहाँ तक कि जो रिश्तेदार थे उनको मना फरमा दिया, उनके बारे में हुक्म शाद फरमा दिया कि वो भी अगर बेनमाजी है तो आपके घर में ना आए। तो अब चंद साल हुए थे हजूर खास सरकार को बैत हुए, तो आप अपने मुर्शिद पाक की बारगाह में गए, मुल्तान शरीफ आस्थाना आलिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमरे पाक की ज़ियारत की और हजूर मियां साहब चादर वाली सरकार के दरबार शरीफ पर बारगाह रसालत बनी, आज भी बारगाह रसालत बनी, जहाँ पर हजूर सल्लल्लाहु तशरीफ लाते हैं, आज भी बारगाह रसालत वहाँ पर बनी है। तो जब हजूर खास का आपके आस्थाना आलिया पर हाजिर खिदमत हुए, तो हजूर मियां साहब चादर वाली सरकार ने इरशाद फरमाया कि देखो बाबूजी, आज आपने हमारे बिस्तर पर लेटा, अब मुर्शिद के बिस्तर पर मुरीद लेटे, ये कैसे हो सकता है? लेकिन हुक्म था, तो आपने पहले तो इनकार किया कि हुजूर मेरी क्या हैसियत कि मैं आपके बिस्तर पर लेटूं, लेकिन आपका हुक्म था, तो आप अपने मुर्शिद के बिस्तर पर लेट गए। आपको रात में 2 ख्वाबें आई, 2 ज़ियारतें हुई कि मुर्शिद पाक चंद दिनों के बाद वसाल फरमा जाएगा, और एक आपके पीर भाई थे, वो भी चंद दिनों के बाद उनका वो भी पता फरमा जाएगा। सुबह उठे, ये परेशानी का हालत था कि अभी तो कुछ साल हुए, तो हजूर मियां साहब चालीस सरकार में मुर्शिद पाक पर्दा फरमा जाएंगे, आप परेशान थे। तो आपने शाद अर्ज की कि सुबह जब बेदार हुए ना, तो हजूर मियां साहब चालीस सरकार दफ्तर में तशरीफ लाए, तो आपने अर्ज की कि हजूर मुर्शिद अगर पर्दा फरमा जाए तो उसका फैज़ जारी रहता है। तो हुजूर मियां साहब चादर सरकार ने इरशाद फरमाया, बाबूजी आप क्या बात करते हैं, मुर्शिद कामल दरवेश कामल अगर पर्दा फरमा जाए तो उसका 70 गुना फैज़ बढ़ जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये 70 गुना फैज़ जो है बढ़ जाता है। ये दरवेश कामल की बातें हैं, ये आम पीर की बात नहीं है, दरवेश कामल की बात है। तो आप कहते हैं कि मुझे इस बात पर ना कुछ इत्मीनान हुआ, तो हुजूर मियां साहब चालीस सरकार चंद महीनों के बाद पर्दा फरमा गए, और पर्दा फरमाने के बाद आपकी ज़ियारत, हमारे पीर भाई तो आपकी ज़ियारत हुई, और आपने शाद फरमाया, देखो जी, जिस रोज़ हमने ख्वाजा सरकार को अपने बिस्तर पर लगाया था, हमने अपना सब कुछ उसी रात उनको अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी वो दरवेश कामल आज इनका उस मुबारक है, और अपनी हयात बारगाह के अंदर सारी ज़िंदगी आपने, सारी ज़िंदगी
इस कदर सुन्नत पर अमल किया कि जब हाई कोर्ट आप जाते थे तो उस वक्त भी सुन्नत का लिबास और पगड़ी पहन कर जाते। और अल्लाह ताला ने वो शान अता फरमाई, वो अख्तियार अता फरमाए कि मुकला हजरात जो थे उन्होंने एक शिकायत की कि यहाँ पर हाई कोर्ट लाहौर के अंदर एक ईसाई वकील था, वो ईसाइयत की तबलीग किया करता था। यानी हाई कोर्ट के अंदर मुकला के अंदर एक इंतशार पैदा हो गया कि ये बंदा जो है ईसाइयत की तबलीग क्यों करता है। ये बात जो है हुजूर खाई सरकार तक पहुंची, तो उन्होंने शिकायत की कि हमारा प्रोग्राम ये है कि हम उसको सबक सिखा दें, यानी उसको पकड़ कर मारे। तो आपने फरमाया ये नहीं करना, इससे फितना खड़ा हो जाएगा, जब भी वो ईसाई की तबलीग करे हमें बुला लें। अब मैं इख्तियारात की बात बता रहा हूँ आपको। वो तबलीग कर रहा था तो हुजूर खास का तशरीफ ले गए, आपका मुनाजरा हुआ। वो मुनाजरा हर पर मुझे याद नहीं, लेकिन आखिरी बात जो हुई वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि हुजूर खास का ने फरमाया आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं। उस ईसाई को फरमाया, तो उसने कहा कि मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता हूँ। और आपने फरमाया अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आपको कोई हुक्म दे तो आप मानोगे? उसने कहा जरूर मानूंगा। तो आपने फिर अगली बात क्या फरमाई? आपने फरमाया कि आज रात, अब अख्तियार देखें अल्लाह ताला ने क्या था फरमाया, आज रात अगर आपको ख्वाब के अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये हुक्म इरशाद फरमा दे कि मुसलमान हो जाओ, तुम हो जाओगे? आज रात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी जिनकी ये ख्वाहिश थी कि या अल्लाह मुझे अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमा, तो अल्लाह ताला ने जिंदा आसमान पर उठा लिया। आज रात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आपको ज़ियारत हो, ईसाई से फरमाया, और आपको ये हुक्म इरशाद फरमाया कि तुम मुसलमान हो जाओ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, क्या तुम मुसलमान हो जाओगे? दूसरे वक्त था, उसने कहा मैं सोच कर बताऊंगा। यानी उसके मुकद्दर के अंदर ईमान की दौलत नहीं थी। ये कितनी बड़ी खुशखबरी थी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उसको ज़ियारत होती है, जिसको वो मानने वाला था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसको फरमाते कि तुम मुसलमान हो जाओ, लेकिन ईमान जो है मुकद्दर से मिलता है। तो उसके मुकद्दर के अंदर ईमान की दौलत नहीं थी। उसने कहा कि मैं सोच कर बताऊंगा। फिर वो सारी जिंदगी हाई कोर्ट नहीं आया, सारी जिंदगी वो हाई कोर्ट नहीं आया। और हजूर खालिद सरकार के बेशुमार मुरीद हैं, उनको हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ियारत पाते हैं। आप इरशाद फरमाते हैं कि मैं एक दफा मुझे ख्वाब के अंदर 3 मंजिला इमारत थी, उसके ऊपर मैं चढ़ा, मुझे हुक्म हुआ कि इसके ऊपर चढ़ो। पहली मंजिल पर गया तो काफी लोग थे, जब मैं दूसरी मंजिल पर गया तो उससे कम लोग थे, जब तीसरी मंजिल पर गया तो चंद लोग थे जो कि उंगलियों पर गिने जा सकते। तो आप क्या फरमाते हैं कि मैंने सामने देखा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखते थे, और सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे। आप की बात बता रहे हैं, कहते हैं मैं अदब की वजह से उल्टा लेट गया। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब देखा ना तो अदब की वजह से उल्टा लेट गया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कमर पर 3 कदम बांध कर रखा, 2 कंधों पर, 1 कमर के दरमियान। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 कदम बांध हुजूर खास कर की कमर पर लगाए, कंधों पर लगाए। और आप सुबह जब बेदार हुए तो आप फरमाते हैं कि बड़े अरसे से मेरे कमर में दर्द था, हुजूर के कदमों की बरकत से मेरे कमर के दर्द जो खत्म हो गया। यानी 3 कदम बारे थे, आपको तरीकत, हकीकत, मार्फत का फैज़ अता फरमाया और आपको शिफा का फैज़ अता फरमाया कि आपको बारगाह साले से हुक्म हुआ कि लोगों का इलाज फरमाया करें। यानी शिफा का फैज़ आपके आलिया पर 90% लोगों को आराम आया करता है, यानी हर बीमारी से। 2-3 लोग ऐसे जो बात है उनका बेअदब, किसी अल्लाह के वली का गुस्ताख, या कि अपने गुनाहों की वजह से मकसद उसने तौबा नहीं की, उस पर डटा हुआ, ऐसे लोग थे उनको आराम नहीं आया करता था। कि यहाँ तक कि आपके आस्थाना के करीब से गुजरने वाले बंदों का आराम आ जाता। एक वक्त ऐसा आया कि हुक्म हुआ कि आपने इलाज नहीं फरमाया,
लोग आपकी ज़ियारत करें, आराम आ जाएगा। आप बैठ जाते हैं, हर बंदे को बताया जाता है कि अपनी बीमारी दिल के अंदर है, जो भी तुम्हारा मसला है, अपनी बीमारी है दिल के अंदर है, और ज़ियारत करके चलते जाओ। जैसी बंदा ज़ियारत करता और उसकी बीमारी खत्म हो जाती। एक औरत थी, उसको इतनी शदीद तकलीफ थी जिस्म के अंदर, तो उसे चला नहीं जा रहा था। आपके आस्थाने आलिया के सामने से गुजरी, जैसे ही सामने से गुजरी तकलीफ खत्म हो गई। वो बड़ी हैरान हुई कि हैरत वाली बात है कि मैं यहाँ से गुजरी, मेरी तकलीफ खत्म हो गई। उसने किसी से पूछा कि यहाँ कौन रहता है या क्या मामला है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक अल्लाह के वली रहते हैं, वली कामल, दरवेश कामल, और आपके बेशुमार मुरीदान को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़ियारत पाक हुई। हमारे पीर भाई उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़ियारत पाक हुई। उन्होंने देखा कि हुजूर खासकर बारगाह रिसालत में हाज़िर खिदमत है, तो हुजूर आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं कि हम इनसे मोहब्बत करते हैं। आका अलैहिस्सलाम कि हम खालिद साहब से मोहब्बत करते हैं, ये हमारे महबूब हैं, इसलिए भी मोहब्बत करते हैं कि ये हमारी सुन्नतों पर बहुत ज़्यादा अमल करते हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हमने ख्वाजा साहब को गौस बनाया, मकाम गौसियत बारगाह रिसालत से मिली, मकाम महबूबियत बारगाह रिसालत से मिली, यानी ऐसे ऐसे मकामात अल्लाह ताला ने उनको अता फरमाए। यहाँ तक कि ये तो छोटा सा बिस्तर मुबारक लगा हुआ है हमारे दरवाशी पर, मेरा ख्याल कम से कम 20-30 फुट लंबाई में बिस्तर मुबारक लगता है। तो सरे महफिल खुली आंखों से, यानी आपकी महफिल के अंदर खुली आंखों से लोगों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सहाबा कराम की, औलिया कराम की ज़ियारत हुआ करती। और आज भी ऐसा होता है कि मेरे विषय पाक बेशुमार दफ़ा ऐसा हुआ कि महफिल हो रही है, बड़ी महफिलें, सालाना महफिलें हो रही हैं, बिस्तर बार लगा हुआ है, सबसे एक लोग, बेशुमार लोग बैठे हैं, तो आपकी कैफियत जो है वो अचानक बदल गई। तो आप शायद फरमाते हैं कि आज कोई आंख वाला है इस महफिल के अंदर, कोई आंख वाला है तो देखे कौन कौन सी हस्तियां आई बैठी। अगर इस महफिल के अंदर कोई आंख वाला है तो देखे कौन कौन सी हस्तियां आई बैठी हैं। और मेरे किबला शाद फरमाते थे, मेरे दादा मुर्शिद आप फरमाते थे कि मुर्शिद कामिल वो है, मुर्शिद कामिल के 3 फर्ज हैं, मुर्शिद कामिल के 3 फर्ज हैं। आप फरमाते हैं कि 3 फर्ज कौन से हैं कि मुरीद का वक्त निज़ा हो और मुर्शिद सामने, मुरीद का वक्त निज़ा हो और मुर्शिद सामने। मुरीद कब्र के अंदर जाए तो मुर्शिद वहां दस्तगीरी करे और रोज़े हशर उसको अपने साथ जन्नत में लेकर जाए। ये 3 फर्ज है मुर्शिद के, 3 फर्ज। आप इरशाद फरमाते हैं कि जिस बंदे को ये अख्तियार नहीं, बहुत बड़ी बात की आपने, बहुत बड़ी बात की आपने, इरशाद पाया कि जिस बंदे को ये अख्तियार नहीं वो बैत ना करे। हम उनका ये फरमान सुनकर कई दफ़ा हैरान होते हैं कि यार ये बंदे ऐसी बैत करते जा रहे हैं, ये किस तरह रहनुमाई करेंगे मुरीद की कब्र के अंदर, वक्त रज़ा पर किस तरह पहुंचेंगे। मेरी बहुत कम उम्र थी, मैं अभी बैत नहीं हुआ था, तो मेरे रिश्ते में मेरे दादा लगते थे और मेरे चाचा जी आखिरी वक्त था उनका, वक्त रज़ा का, तो मेरे चाचा जी की गोद के अंदर उनका सर था। मुझे इन बातों का इल्म नहीं था, ये जो आज हो रही है। कहते हैं कि अचानक उनका आखिरी यानी वक्त रज़ा का आलम था कि मैंने देखा उठ कर बैठ गए, उठ के बैठ गए, तो काफी देर किसी से बातें करते हैं। कहते हैं मुझे नहीं पता कि क्या बातें हैं, मुझे एक बात भी समझ नहीं है, हालांकि मैं बिल्कुल करीब बैठा हुआ था। कहते हैं बातें करते रहे काफी देर बातें करते रहे। उसके बाद ना उनके होशो-हवास कायम थे, तो मैंने उनसे पूछा कि वो मेरे चाचा जी के चाचा थे, वाला साहब के चाचा, तो मैंने उनसे पूछा कि आप किससे बातें कर रहे हैं। कहते हैं कि मेरे मुर्शिद पाक आए, इसे कहते हैं दरवेश कामिल। कहते हैं कि मेरे मुर्शिद पाक आए थे, मैं उनसे बातें कर रहा था, बस इतनी बात की, लेट गए और रूह बर्बाद हो गई।
इसे कहते हैं दस्तगीरी, वक्त रज़ा के मुर्शिद कामिल वक्त रज़ा दस्तगीरी फरमाता है। मुरीद मेरे किबला ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया कि मेरे हमारे मुरीद गुनाहगार से गुनाहगार तर भी क्यों ना हो, खुदा की कसम वक्त रज़ा उन पर भी करम हो। ये निस्बत का फायदा है, यानी पहले मुर्शिद तलाश करो, यानी ये नहीं कि कोई भी जुब्बा कुब्बा पहन के आ जाए आप उसके बैत हो जाए, नहीं, पहले तलाश करो, महफिल में जाए तलाश करो, उनके आस्थानों में जाए, उनका तरीका कार देखें। जब मुर्शिद कामिल मिल जाए, अगर ना मिले तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें, या इलाही मैं तेरे महबूब बंदे का वो तलाशी हूँ, मैं तेरे महबूब बंदे को तलाश कर रहा हूँ, तुझे पता है वो कहाँ है, मुझे मिला दे। ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं कराची में रहा करता था, तो मैंने यानी ये नहीं कि यहाँ किसी ने बता दिया मैं चला गया और बैत हो गया, मैंने इतना सफ़र किया किसी वली कामिल की तलाश के अंदर, इतना सफ़र किया कि मुझे पता है कि मैंने 2-2 दिन और 2-2 रातें जो है ना मैंने सफ़र में गुजारी। जहाँ किसी ने बताया वहाँ पर अल्लाह का बंदा मैं चला गया, लेकिन जब गया तो मुझे इत्मीनान ना हुआ। यानी मैं कराची में रहा करता था, फैमिली कराची में थी, तो एक बंदा मिला मुझे इनका मुरीद, उसको उस मार्केट के अंदर आए हुए, यानी बस गाड़ी की मार्केट थी, उसमें आए हुए कोई 1-2 महीने गुजर गए, तो मुझे मेरा एक दोस्त था, भाई बना हुआ था मेरा, वो पार्टनर भी था काम के अंदर, तो मुझे बताता रहता कि यार फलां बंदा एक मौलवी साहब आए हैं, उनका एक पीर भाई यहाँ रहता है, खून के अंदर खून पे इलाज करवाते हैं, बंदा ठीक हो जाता है, किसी दाढ़ में दर्द है वो खून पे इलाज करवाते हैं, बंदा ठीक। मेरे यहाँ से यानी इधर से बात आती है, इधर से निकल जाती है, यानी दिल के अंदर वो बैठती नहीं। एक दिन हम एक महफिल के अंदर इकट्ठे हो गए, वो जो मेरे दोस्त था उन्होंने कहा जी यही तो वो मौलवी साहब हैं कि जो अपने पीर भाई से इलाज करवाते हैं, महफिल पाक के अंदर लेकर जाते हैं। मैं ना बड़ा बादल हो गया, तो एक छोटा सा प्रोग्राम था, उसके बाद मैंने उनसे मिला, मैंने उनकी बातें सुनी, यानी बातें उनकी ऐसी थी कि मेरे दिल के अंदर उतरती गई। मेरा मामूल ये था कि शाम को छुट्टी की, वर्कशॉप से छुट्टी की और उसके बाद चला गया, रात को 12 बजे 1 बजे तक उसके पास बैठा, यानी उसे कहता था तू बातें कर मैं सुन। मुझे अच्छी तरह याद है कि 13 दिन हो गए मैं उसके पास बैठता, रोजाना उससे पूछता था तुझे ज़ियारत नहीं है, ये अपनी बात बता कि एक अरसा तलाश किया मैंने, अरसा, ये नहीं कि जिसको देखा बस वो सोचा ठीक है जिसका बैत हो जाए। मुझे लोगों ने भेजा कि वहाँ चले जाओ, लोग फलान जगह चले जाओ, सबड़याल कहाँ है, वजीराबाद किधर है, किधर कोहाट है, किधर दूसरा चिड़ियोड़। उसने रोज मुझसे पूछना कि ज़ियारत नहीं हुई, मैंने कहा नहीं। हफ्ते का दिन, इतवार की रात, मेरा ख्याल 13 दिन हुए थे, ये 14 दिन उसके बाद बैठ रहा, तो मुझे पहली अच्छी ज़ियारत हुई। मैं घर गया 12 बजे, जैसे मैं घर गया तो मैं लेटा, नींद आ गई। मैं लेटा ही था, नींद आ गई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा अपने सामने आ गया, सुभान अल्लाह, ऐसे ना सामने पे जीना शीफ, सामने बिल्कुल ज़ियारत हो रही थी। तो मेरे घर वाले जो है ना कुछ काम कर रहे थे, 12 बजे, कराची का मामूल था लेट सोना, उनके हाथ से प्लेट गिरी नीचे फर्श पर, आवाज़ आई, मैं उठ गया, मुझे बड़ा गुस्सा आया, खैर मैं फिर सो गया। फिर एक ज़ियारत हुई, यानी ख्वाब के अंदर हुक्म हुआ। फिर तीसरी ज़ियारत क्या हुई कि 2 शहजादे, मेरे किबला दादा मुर्शिद के 2 शहजादे, एक मेरे मुर्शिद, एक उनके बड़े भाई, मस्जिद के अंदर मगरिब का टाइम है, ख्वाब के अंदर, और बैठे हुए मेरे मुर्शिद जो है अबामत वाले मसले में बैठे, और मेरे ताया मुर्शिद जो है उनकी इस साइड पे बैठे। तो मुझे जिनका ज़हन बनाया गया था मेरा कि आपने बाबा से कहा बैठ होना है, और मैं बड़ा मुंतज़र था किस वक्त ये मेरा काम खत्म और मैं जाऊँगा। मैंने अपने ताया मुर्शिद की दस्तबोसी की करके मैं सामने आकर बैठ गया अपने मुर्शिद,
اب لوگ جو ہے نا ملاقات کرتے ہیں 10 کوسیاں کر کے جا رہے ہیں، تو میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ یہ جگہ اور یہ جگہ جس طرح ٹیوب لائٹ کا روشنی ہوتی نا یا بلب کی روشنی سفید اس طرح نور نکل رہا ہے سبحان اللہ. آپ کی گردن اور آستین. اس کے بعد آپ نے نا جب فارغ ہوئے تو مجھے آپ نے حکم فرمایا ایسے اشارہ کیا تھا. میں گیا آپ کی دستبوسی کی، آپ نے کچھ چیز مجھے عطا فرمائی، آپ نے فرمایا سب کو تقسیم کرو خواب کے اندر. اور جب یہ خواب آئی نا تو میرا یقین جو تھوڑا بہت میرے دل کے اندر تھا وہ بھی نکل گیا، یعنی یقین کی کیفیت پیدا ہو گئی. اب میں نے وہاں جا کر جن کی مجھے تلاش تھی وہ مجھے مل گئی. اسے کہتے ہیں مرشد کامل، کہ جن کو پتا ہو کہ ہم سے محبت کرنے والا کہاں رہتا ہے، اور ان کو پتا پائے چاہے وہ سینکڑوں میل ہزاروں میل دور رہتا ہو، ان کو پتا ہو کہ ہمیں محبت کرنے والا جو ہے وہ ہمارا وہاں رہتا ہے. تو ہم جب گئے تو محفل کے اندر شامل ہوئے تو جو کچھ دیکھا تھا اس سے بڑھ کر پایا. خدا کی قسم، یعنی میں نے آج تک ایسا سلسلہ اور آج تک ایسا ولی کامل نہیں دیکھا اپنی زندگی کے اندر، اور آج تک ایسا طریقہ نہیں دیکھا. آپ نے ارشاد فرمایا پوری دنیا پھر کر دیکھ لو، نہ ایسا سلسلہ پاؤ گے، نہ طریقہ پاؤ گے، نہ فیض پاؤ گے. میرے قبلہ دادا مشتاق بیعت فرما رہے تھے تو بندے اس طرح بیٹھے تھے. ایک شخص جو تھا وہ آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کسی جگہ بیعت ہو؟ اس نے کہا نہیں جی، یہ میرے دادا مشتاق کی بات ہے، آپ نے اپنا بات کیا. اس نے کہا نہیں جی. آپ نے دوبارہ پھر پوچھا کہ تم کسی جگہ بیعت ہو؟ اس نے کہا نہیں جی. آپ جلال میں آتے. آپ نے فرمایا تم فلاں جگہ فلاں سے کے بیعت نہیں ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، میں بیعت نہیں ہوں. تیرے مرشد 2 دفعہ میرے پاس شکایت لے کر آ چکے ہیں اسی دوران، وہ بھی ولی کامل تھے، کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ میرے ساتھ توجہ نہیں کرتا. یہ ہے نگاہ درویش کامل. اب تو یہ المیہ ہے کہ جو بندہ جہاں پر بھی بیعت ہے کسی ولی کامل کا بیعت ہے، بس پیر جو کہتا ہے وہ کہتا ہے آجا تو میرا ہو جا، بس ان کو چھوڑ دے. یعنی یہ درویش کامل کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ایسی ہستیوں کی نسبت نصیب عطا فرمائے جو بندے کسی ولی کامل کے ہاتھ پر آج تک بیعت نہیں ہوئے. میں ان کو یہ نہیں کہتا کہ آپ بیعت ہو جائیں، میں ان کو دعوت یہ دیتا ہوں، دعوت فکر یہ دیتا ہوں کہ پہلے جا کر دیکھیں، پہلے طریقہ کار دیکھیں، ان کی بارگاہ میں بیٹھیں، پہلے ان کی صحبت میں بیٹھیں، پھر اگر دل مانے تو پھر ان کے دامن کو پکڑ لیں. میرے قبلہ میرے مشتاق میرے پیر بھائی کو زیارت ہوئی حضرت سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ جو ہمارے سلسلہ علیہ سربراہ ہیں، اور جن کی زیارت جو ہے بہت کم ہوتی ہے اور ہمارے سلسلہ علیہ میں کثرت سے ہوتی ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ میرے مرشد پاک کے متعلق ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے بابا جی سرکار کی بیعت کی ہے ان کو ہماری طرف سے مبارک دے. کون کہتے ہیں؟ سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ. ان کو ہماری طرف سے مبارک دے دو، اور بابا جی سرکار کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو، کبھی چھوڑنا نہیں. بابا جی سرکار ہمارے بھی محبوب ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبوب ہیں. اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، شہنشاہ صداقت سیدنا صدیق اکبر، زندہ باد، شہنشاہ صداقت سیدنا صدیق اکبر، زندہ باد، حضور غوث اعظم خواجہ سرکار، زندہ باد، حضور غوث اعظم خواجہ سرکار، زندہ باد. حضور نے اسد جادل سرکار آپ کے جو مرشد کامل ہیں ان کا ایک مرید تھا، بیعت ہوا چلا گیا. یہ زیادہ اور کی بات ہے، اس سے قتل ہوا یا قتل کا مقدمہ ہو گیا اس کے اوپر، یہاں تک کہ سزائے موت ہو گئی، سزائے موت ہو گئی. اب رات کو کوٹری میں بند رو رہا ہے کہ سزائے موت ہو گئی، 2-4 دن کے اندر پھانسی لگ جاؤں گا. حضور میں اسد جادل سرکار ان کے خواب میں آئے
رات کو وہ سو گیا اس طرح پریشانی کے حالت میں. تو جن کا وہ بیعت ہوا تھا, بیعت ہونے کے بعد کبھی آستان عالیہ نہیں گیا, بیعت ہونے کے بعد کبھی مرشد پاک کی بارگاہ میں نہیں گیا, دوبارہ کبھی زیارت نہیں کی. تو آپ ان کی خواب کے اندر آئے, آپ نے شاہ فرمایا اٹھو بابو جی مجھے پہچانا, میں کون؟ کہتا نہیں جی. اب مرشد کا چہرہ ہی تو گیا کہ جتنا عرصہ ہو گیا مرشد کا چہرہ بول گیا, بیعت ہونا بول گیا. کہتا تو فلاں جگہ پر میرا بیعت ہوا تھا, ہمارا بیعت ہوا تھا, تو ہمیں بھول گیا, ہم نہیں بھول گئے, تو ہمیں بھول گیا, ہم نہیں بھول گئے. صبح اٹھ کے کیا کہتے ہیں اپیل, صدر کو اپیل دے. اس وقت کا صدر تھا ضیاء الحق. 100 اپیلیں گئی, 100 اپیلیں اس کے پاس, ایک منظور ہوئی. کس کی منظور ہوئی؟ اسی بندے کی. وہ بندہ رہا ہو گیا. ایوب خان حضور کے ساتھ 40 سرکار کی بارگاہ میں گیا. ایوب خان تو آپ اپنے کمرہ خاص میں بیٹھے تھے, خادم کو حکم دیا کہ اس کو لنگر شریف لا کر دو. مرید 2 روٹیاں لے کر آیا اور دال شریف لے کر آیا. اس نے 1 روٹی کھائی, اٹھ کے چلا گیا. آپ نے فرمایا کہ دنیا مانگنے کے لیے آیا تھا, ہم نے پوری زندگی کی بادشاہت اس کے آگے رکھی.